Hello everyone, welcome to our channel Learn Easy AM. In this video, we are going to solve 2020-21 UIMO Class 7 question paper. So let's get started. Question number 1 is, Sunil wrote an equation as m by 4 equals to 5. Which of these is the statement for Sunil's equation? We can see in this equation, it's 1/4 of m is 5. 1/4 of m equals 5 means 1/4 of m is 5. So we can see which option? 1/4 of m is 5. This is option C. Next question is question number 2. The hypotenuse of 4 congruent isosceles right triangles serve as the sides of a square as shown. If the area of the unshaded square is 27 square centimeter, find the area of the shaded region. अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है. रीज़न बीइंग, if we know the property that diagonals of a square bisect each other at 90 degree, so means the diagonals of the square are perpendicular bisector. So we can see the diagonals of the square divide this square into 4 triangles, and the triangle type is isosceles right angle triangle, where this is the hypotenuse of the square. So in this question we see, if we join all these shaded parts, it will eventually form a square only. So the area of the unshaded square is 27 square centimeter, and the area of the shaded square would also be 27 square centimeter. So that goes your option B. I hope you are able to understand. Then next is question number 3. What is the value of this expression? This expression we will solve using BODMAS. So in BODMAS, we first solve brackets, then off, then divide, then multiply, addition and subtraction. So पहले हम देखते हैं brackets का भी order रहता है. First we solve these small brackets, then curly bracket and then box brackets. So this is the small bracket. Off means multiply. So 6 multiply minus 5 gives you minus 30. Again 6 is multiplied with minus 30, so that gives you minus 180. So in this bracket, curly bracket, we have minus 2 minus 180, which gives you minus 182. Now in this box bracket, we have 13 minus 182 and 7 is के बाहर है. So this minus minus gives you plus. So 13 plus 182. This gives you 7 minus 195 and the answer is minus 188. So the option is D. Question number 4 is incorrect answers are given. So this question has been deleted from the marking scheme. So we won't be solving. So next question is question 5. How many 16ths are there in the resultant of this? So again very easy, using BODMAS we will first solve the bracket. So bracket में ये देखिए, this is plus minus gives you minus. So minus 3 1 by 8 gives you minus 25 by 8. So minus 25 by 8 plus this is 7 by 6. Plus minus is minus. 12 into 2 is 24 plus 1. 25 by 12. मल्टीप्लाई माइनस 3 बाय 2. इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके. सो 8 6 एंड 12 का एलसीएम होता है आपका 24. सो 8 मल्टीप्लाई 3 इज़ 24. सो माइनस 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 6 इंटू 4 इज़ 24. सो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से इंटू मल्टीप्लाई माइनस 3 बाय 2. So minus 25 into 3, this is minus 75 plus 28 minus 50
डिवाइडेड बाय 24 इंटू -3/2. सो माइनस माइनस वालों को हम प्लस कर लेते हैं. सो दिस वुड बी 28 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 24 इंटू -3/2. सो इन्हें आप माइनस कर लेंगे. यू विल गेट -97 डिवाइडेड बाय 24 इंटू -3/2. माइनस से माइनस कैंसिल बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. एंड दिस इज़ 8. सो दिस इज़ 97 बाय ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से. सो दैट इज़ 16. सो अब इसने हमें बोला है कि हाउ मेनी 16ths आर देयर इन द रिजल्टेंट ऑफ दिस. सो 16ths निकालने के लिए हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरी इजी, जो भी आपका आंसर आ रहा है. सो आंसर इज़ 97. दैट इज़ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 up to so on and 11. Again this question is also very easy. Arithmetic mean और average they are same thing. को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, sum of all the observation divided by number of observations. तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर हैं. सो डिवाइड करेंगे 11 से और इन सब का सम कितना आएगा, मीन्स 1 + 2 + 3 से लेके 11 तक के जितने नंबर हैं सबको आप सम करेंगे तो आपके पास 66 आएगा. सो आंसर इज़ 6. दैट इज़ ऑप्शन बी. अगर आपको सम जल्दी से निकालना है बिकॉज इट विल टेक टाइम, तो देर इज़ अ फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. सो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे हम फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे हैं. सो n की वैल्यू होगी 11. सो यानी कि 1 से लेके 11 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सम होगा. यहाँ पे अब n के प्लेस पे 11 डाल दीजिए. सो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 11 इंटू 12/2, 2 इंटू 6, 66. तो अगेन सम डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने के लिए 11 नंबर है तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा. सो वेरी इजी क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. By how much is a² + 2ab + b² less than a² - 2ab + b². तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे. वेरी इजी. तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल से करना है तो पहले आप ये नंबर लिखिए, देन हम लिखेंगे a² + 2ab + b². सेकेंड एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं सबका साइन चेंज करना है बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग. तो प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस. सो प्लस a² - a² कैंसिल, प्लस b² - b², -2ab - 2ab इज -4ab. सो आंसर इज -4ab. दैट इज ऑप्शन सी. हॉरिजॉन्टल से करना है सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. -a² + 2ab + b². तो आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सबके साइन चेंज होंगे. सो -2ab + b² -a² - 2ab - b² प्लस a² - a² कैंसिल, प्लस b² - b² कैंसिल, -2ab - 2ab गिव्स यू -4ab. सो अगेन सेम ऑप्शन, ऑप्शन सी. Next question is question 8. Subtract 3/2x - 5y/4 - 7z/2 from this expression. So again the question is very easy. You have to subtract first term from second term. So we can write the question. We can do question using horizontal or vertical method. सो ये वाला क्वेश्चन हम वर्टिकल से करेंगे, पिछले वाला हमने हॉरिजॉन्टल से किया था. -5/4 - 7z/2. We have to subtract. So what we have to do? We have to change the sign
साइन चेंज किए। साइन कैसे चेंज करना है, जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे, जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे इन सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल द टर्म्स. So this is 2x by 3 and 3x by 2. We will do 2 by 3 minus 3 by 2. तो अगेन इसमें हम एलसीएम लेंगे. 3 और 2 का एलसीएम होगा आपका 6. So 3 into 2 is 6. So 2 multiply 2 gives you 4. 2 into 3 is 6. So 3 into 3 gives you 9. तो इससे हमें मिलेगा minus 5 by 6. So this is minus 5 by 6 x. अब ऑप्शंस में देख लें. ऑप्शंस में -5 by 6 x सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी. तो वैसे हमें y और z वाली टर्म्स को सॉल्व करने की नीड नहीं है. सो वी कैन जस्ट सिंपली मार्क ऑप्शन बी टू सेव आवर टाइम. इवन इफ आई विल सॉल्व अदर्स ऑल्सो फॉर यू. तो यहाँ पे हम सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, 3y by 2 प्लस 5y by 4, यानी हमें ऐड करना है 3 by 2 एंड 5 by 4 को. अगेन द एलसीएम इज़ 4. सो 2 into 2 is 4. सो 3 is multiplied by 2 एंड ये आपका सेम रहेगा. सो दैट गिव्स 11 by 4. तो यानी द आंसर इज़ प्लस 11y by 4. तो इससे हमारा कंफर्म हो गया है कि ऑप्शन बी ही होगा. इन द सेम वे यू कैन सॉल्व दिस थर्ड टर्म ऑल्सो, और इससे आपको मिलेगा 13z by 6. सो दिस इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9. एक्सप्रेस दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट एंड देन डिवाइड. सो द क्वेश्चन गोज लाइक this is minus 1 by 4 and minus minus gives you plus. So this is minus 1 by 4 plus 1 by 6 divided by, this is minus 1 by 3 plus 1 by 2. यहाँ पे हम LCM ले लेंगे पहले. So 4 और 6 का LCM होगा आपका 12. So 4 into 3 is 12. तो यहाँ पे आएगा -3 एंड 6 into 2 is 12. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 का एलसीएम होगा आपका 6. सो यहाँ -2 प्लस 3. सो दिस इज़ -1 by 12 डिवाइडेड बाय 1 by 6. अब फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं. डिवीजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लाई, और जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है सेकेंड फ्रैक्शन, उसका हम रेसिप्रोक कर लेंगे. सो -1 by 12 मल्टीप्लाई 6 by 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा -1 by 2, विच इज़ ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन. इन क्वेश्चन 10, इफ़ a raised power m divided by a raised power n equals to 1 upon a raised to the power n minus m and all exponents are positive, then which of the following is true? Now this is a law of power and exponent. When you divide powers with same base, the exponents are subtracted. But again there are two forms of writing this law. The law says that a raised to the power m divided by a raised power n equals to, इसमें हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो m माइनस n. लेकिन ये हम कब लिखते हैं, ये तब लिखते हैं जब m की वैल्यू n से बड़ी होती है. सो m इज़ ग्रेटर देन n. एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज a रेज टू द पावर n माइनस m. ये कब लिखेंगे हम, ये तब लिखेंगे जब m की वैल्यू n से छोटी होगी, यानी m इज़ लेस देन n. सो आप ऑप्शंस देख लीजिए. ऑप्शन में ये भी हो सकता है m लेस देन n, वी कैन ऑल्सो राइट n ग्रेटर देन m. तो आपको दोनों चेक कर लेना है. ऑप्शंस में m लेस देन n गिवन है. सो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. वेरी इजी क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. -2 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर -3. तो यहाँ पे हम वो वाला लॉ लगाएंगे कि पावर रेज टू द पावर पावर. सो हियर द एक्सपोनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड.
तो अगेन -2 मल्टीप्लाई -3 गिव्स यू +6 एंड -2 रेज टू द पावर +6 से आपको मिलेगा, यू कैन राइट बिकॉज द पावर इज़ इवन, सो ये आपका माइनस साइन this will dissolve and 2 raised by 6 gives you 64. Very easy again. Then next is question 12. What is the difference between the biggest and the smallest of the fractions? तो इसमें आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को LCM लेके करेंगे सो इट विल टेक मोर टाइम, सो टू सेव टाइम हम इन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट करके फिर कर लेंगे। तो अगर आप इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करते हो सो 3/4 होगा आपका 0.75, 8/9 गिव्स यू 0.88, 2/3 गिव्स यू 0.66 एंड 4/5 गिव्स यू 0.8। तो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, दिस इज़ 0.88, दिस इज़ द डेसिमल, बिगेस्ट डेसिमल। तो यानी ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, बिगेस्ट वन, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ 0.66, दैट इज़ 2/3। सो हम इसमें 8/9 और 2/3 को माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। सो 8/9 माइनस 2/3, इससे आपको आंसर मिल जाएगा, द LCM विल बी 9, सो 8 minus 6, that is 2/9, this is the answer. So 2/9 हमारा है ऑप्शन D. Then question number 13, this is from lines and angles. In the given figure AB is parallel to DE, what is the measure of Q? तो आपको एंगल Q का मेजर निकालना है। सो अगेन इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन का, बिकॉज AC and CD lines they are joining at point C, so we have to do construction in this. तो हम जल्दी से फिगर बना लेते हैं इसका। This is AB, DE, these two lines are parallel, this is Q, this point is C, this angle is P, और ये हमें 260 डिग्री दिया गया है, एंड दिस इज़ 58 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू C विच इज़ पैरेलल टू AB एंड DE। सो यू कैन नेम दैट लाइन एज लाइक, E तो ऑलरेडी आपको गिवन है, सो FG। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल FG पैरेलल DE। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि जो एंगल P है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला एंगल हम एंगल 1 लेते हैं और ये नीचे वाला एंगल लेते हैं एंगल 2। ओके, सो एज AB इज़ पैरेलल टू FG, सो एंगल Q इज़ इक्वल टू एंगल 1, they will be alternate angles. AC is the transversal and AB is parallel to FG. So angle Q equals to angle 1, they are alternate angles. In the same way, FG is parallel to DE. So angle 2 equals to 58 degree. Again, alternate angle as CD is the transversal. Now angle P means angle 1 plus angle 2. ये आप निकाल सकते हैं बिकॉज आपको ये पूरा एंगल 260 डिग्री दिया गया है, सो द होल एंगल इज़ 360। सो 360 में से हम 260 को माइनस कर देंगे, सो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 डिग्री। नाउ एंगल P को हमने लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज़ 100 डिग्री। एंगल 1 इज़ एंगल Q एंड एंगल 2 इज़ 58 डिग्री। इस इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 58 डिग्री विच गिव्स यू 42 डिग्री। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया तो इसलिए सॉल्व करके दिखाया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंगल P निकालिए, 360 माइनस 260 100,
एंड एंगल 1 आपका क्यू के इक्वल है, सो 100 में से आप 58 को माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं. सो दिस इज ऑप्शन सी 42 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ -2/5. दिस एक्सप्रेशन को हमें सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है. सो अगेन हम इसे सॉल्व कर लेंगे एंड निकाल लेंगे. तो सॉल्व कैसे करना है वो देखना होगा. इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस में आपको 2 टर्म गिवन है, यानी इसे भी हम 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे करेंगे? ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है इस फॉर्म में a+b डिवाइडेड बाय c. सो इसे हम लिख सकते हैं a/c प्लस b/c. ये c आपका दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे भी हम सेपरेट कर लेंगे. सो -3ab² आपका दोनों टर्म से डिवाइड होगा. सो दिस वुड बी -2a²b² 5 डिवाइडेड बाय -3ab² 5 प्लस का साइन है. सो 3ab³ 5 डिवाइडेड बाय -3ab² 5. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे जैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं. सो जो कैंसिल हो रहा है उसे क्या कैंसिल कर दीजिए. b² से b² कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस. यहाँ माइनस है तो आप बेटर टू राइट इन अ ब्रैकेट. 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3. देन वी हैव a to a एंड b का भी आपका एक b बचेगा यहाँ पे, एंड वी आर लेफ्ट विद 1a. सो दिस विल बी 2a/3 प्लस ये माइनस का साइन भी है हमारे पास, माइनस b. सो 2a/3 माइनस b. सो विच ऑप्शन वी आर हैविंग हियर? 2a/3 minus b. That is option C. Then next is question 15. At what rate % per annum will the sum of money double in 8 years? So very easy question. At what rate %? So means आपको rate % निकालना है. Will the sum of money, sum means principal. सो प्रिंसिपल विल गेट डबल. सो यानी कि ये आपका 2p हो जाएगा. तो यानी आपको ये अमाउंट दिया गया है इन 8 ईयर्स. टाइम आपको 8 दिया गया है. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट तो दिया नहीं गया है, हम इसे निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं. वेरी इजी. If this is the principal, this is the amount. So simple interest is amount minus principal. Amount is 2p, principal is p. So simple interest आपका p आ जाएगा. तो यहाँ पे हम p रखेंगे. p into r into time is 8 years 100. So यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं. p से p कैंसिल होगा और ये दूसरी साइड जाएंगे. So 100 divided by 8%. So if you will solve this question, you will get 12.5%. So the option is A. Another method to do this question is you can let principal is 100. Now in the question it says that the sum of money doubles. So यानी कि amount हो जाएगा इसका डबल प्रिंसिपल का. So that will be 200. So again simple interest will be amount minus principal 100. So again हम फॉर्मूले में डाल देंगे 100 इक्वल्स टू 100 इंटू, उससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा. टाइम आपको कितना दिया गया है? 8. सो ये आपका 100 से 100 कैंसिल एंड आर की वैल्यू आएगी 100/8%. सो यू आर गेटिंग सेम आंसर. Rest of the questions we will be solving in next video. Thank you. Bye bye.